Good morning, dear students. I hope you all are doing well this morning. So, previously, in the previous session, we discussed about types of disease, acute disease, chronic disease. Another type we studied with the congenital disease and acquired disease, right? Then we studied that acquired disease is further classified into two. Okay, હજી બે કેટેગરીઝમાં ડિવાઈડ થાય છે, દો और કેટેગરીઝ में डिवाइड हो रही है. दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज जो કોમ્યુનિકેટ હોતી है. ઓકે, એકબીજાથી કમ્યુનિકેટ થાય છે, રાઈટ, એક પર્સનથી બીજા પર્સન સુધી. નોન કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝનો મિનિંગ શું છે? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ નોન કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ વેન ઇટ ઇઝ નોટ સ્પ્રેડિંગ ફ્રોમ વન પર્સન ટુ એનધર. એક પર્સનથી બીજા પર્સન સુધી સ્પ્રેડ નથી થતી, કમ્યુનિકેટ કરી નથી થતી. કેમ નથી થતી? કેમ કે એમાં ફંક્શનિંગ, કોઈ બી બોડીનું જે ફંક્શનિંગ હશે, એની ઓફ ધ બોડી ફંક્શનિંગ ઇઝ નોટ વર્કિંગ પ્રોપરલી ઓર ઇટ ઇઝ ડેમેજડ, યા તો એના જે સેલ્સ છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયા છે, રાઈટ, એનાથી આ ડિઝીઝ સ્પ્રેડ થાય છે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ નોટ કમ્યુનિકેબલ, યા તો એને આપણે વાયરલ ન કહી શકીએ. ઓકે, દેટ્સ ઓલ જસ્ટ બિકોઝ નોટ ફંક્શનિંગ of the body system, या तो organ system, या तो organs, right? Next, today we'll be studying about acquired disease which develop after birth. એવી કઈ acquired disease છે જે birth પછી થાય છે? Okay, so let me tell you that infectious disease, non-infectious disease, the disease that are communicated from diseased person. એટલે એવી disease જે એક diseased પહેલાથી જેને થઈ ગયેલું છે એનાથી કોનામાં ટ્રાન્સફર થશે? હેલ્ધી પર્સનમાં. એવા ડિઝીઝ જે કમ્યુનિકેટ થશે એક ડિઝીઝડ પર્સનથી હેલ્ધી પર્સનમાં. ઓકે, ધ ડિઝીઝ વિચ ઇઝ સ્પ્રેડ ઓર કમ્યુનિકેટેડ ફ્રોમ અ ડિઝીઝડ પર્સન ટુ અ હેલ્ધી પર્સન. ઓકે, વિચ આર ધી એજન્ટ્સ? બાયોલોજિકલ એજન્ટ્સ કયા છે જેના થ્રુ આ ડિઝીઝ સ્પ્રેડ થશે? તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? पैथोजेंस. वी आर टेलिंग देम एज पैथोजन, वी आर कॉलिंग देम एज पैथोजेंस. हम उसे पैथोजेंस कहते हैं जिसके थ्रू डिजीज स्प्रेड होती है, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एंड निमेटोड्स. ओके, आई डोंट थिंक कि आपको ये सभी नाम का मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा. वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 17 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. उसमें हमने क्लासेस स्टडी किए थे. नेमेटोड्स आपको पता है, जो निमेटोड्स के फाइलम में आता है, राइट. वी ऑल्सो स्टडीड वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स एंड फंगाई. ओके, आपको अगर उसके पिक्चर्स चाहिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, विल बी डिस्कसिंग दी पिक्चर्स ऑफ दैट. सो ये था इन्फेक्शियस डिजीज़. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब द डिजीज़ दैट आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज पर्सनस हु आर सफरिंग. मतलब ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती. जैसे हमने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में पढ़ा था, ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी, ये एक ही पर्सन तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगी. मतलब उसके जो पर्सन में डिजीज़ हुई है उसके तक ही सीमित रहेगी. જે પર્સનને ડિઝીઝ થયું છે, રાઈટ, એના સુધી જ રહેશે, ટ્રાન્સફર નહીં થાય. એ પર્સન સુધીમાં ટ્રાન્સફર નહીં થાય. એટલે આપણે એ ડિઝીઝને નોન ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ કહીએ છીએ, બિકોઝ એમાં કોઈ ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ્સ નથી. ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ્સ મીન્સ કે જે ડિઝીઝ સ્પ્રેડ કરવાવાળા હોય એક પર્સનથી બીજા પર્સનમાં, એમાં કોઈ ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ્સ નથી હોતા. કેમ કે આ ડિઝીઝ ઇન્ટિરિયરલી બોડીના અંદરથી કોઝ થાય છે. એટલે બોડીના ऑर्गन्स, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, वो ठीक तरीके से मेंटेन नहीं है या तो वर्क नहीं करते. इसीलिए ये डिज़ीज़ को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं. और उसके एग्जांपल्स हैं हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक कैंसर. जेनेटिक कैंसर मीन्स जनरली फ्रॉम दी अंदर जो जेनेटिकली मीन्स क्रोमोसोमल है या डीएनए मटेरियल्स के थ्रू, जीन प्रॉब्लम के थ्रू कैंसर का इनहिबिशन कैरी ऑन होता है. ओके, हाई ब्लड प्रेशर का तो मीनिंग पता ही है आपको.
नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स कंपैरिजन, हम डिजीज़ का अगर कंपैरिजन करते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ का, देन इट इज़ कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है? क्रॉनिक डिजीज़ है, दैट इज़ धीरे धीरे होगी एक पर्सन में से, बट फॉर जनरली इट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम तक होगी। ओके और एक्यूट डिजीज़ का अगर रख लो, एक्यूट डिजीज़ क्या है? थोड़ी सीवियर है लेकिन विद इन अ शॉर्ट टाइम वो मेंटेन हो जाती है। डैमेजेस डन बाय एक्यूट डिजीज़, कौन कौन सी डैमेजेस होती है? थोड़ा टायर्ड हम फील करते हैं, लिटिल बिट टायर्डनेस, ठीक है। फिर हेडेक, सर का दुखाव होता है, हेडेक, माथो दुखे है, राइट। ऑल दिस आर वेरी शॉर्ट टर्म डैमेजेस है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम तक ही रहेगी, लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देता है बॉडी को। ओके तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट मीन्स नॉट वेरी सीवियर। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स डैमेज डन बाय क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ के थ्रू ये लॉन्ग टर्म वीकनेस देती है, मीन्स लाइक 24 आवर्स वी आर फीलिंग टायर्ड एंड बॉर्डम जैसा। फिर ये लॉन्ग टर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइफ टाइम जनरली उसका आपको प्रभाव दिखने को मिलेगा, उसका जो जितने भी उसके सिम्टम्स है लाइफ टाइम आपको उसके सिम्टम्स दिखेंगे। नाउ बिकमिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ मतलब श्वास की प्रॉब्लम होती है, या तो हम कहते हैं ना टूकी श्वास लेवाई से, लाइक दैट। लूजिंग एक्सेसिव वेट मतलब वेट लॉस होता है। ओके वजन घटाड़વું, वजन घटी जવું। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग्ड जनरल पूर हेल्थ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ के इश्यूज़ रहते हैं। हेल्थ के इश्यूज़ मीन्स कि हेल्थ अच्छी नहीं रहती। नेक्स्ट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, रेयर केसेस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके अलग अलग टाइप्स की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी। दीज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ बीइंग लॉन्ग टर्म सिक। ये क्यों सब होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म मीन्स फ्रॉम दी लॉन्ग एज पीरियड से लेके उसके सिम्टम्स दिखने के शुरुआत हो जाती है। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। इन्फेक्शियस कॉजेज़ और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ की बात करें तो उसके दो टाइप्स आएंगे, एक आएगा इमीडिएट और एक आएगा नॉन इमीडिएट। इमीडिएट कॉजेज़ बिलोंग टू टू टाइप्स। ओके इमीडिएट कॉजेज़ दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं। इन्फेक्शियस कॉजेज़ में कौन आएगा? माइक्रोब्स आएंगे। माइक्रोब्स हमने पढ़ा था कि जो नरी आँखें हम ना देख सकें, naked eye. Okay the organisms or microorganisms or the living organisms which are not observed through naked eye, जो naked eye के थ्रू हम नहीं देख सकते, उसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब क्या है? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ मीन्स क्रोमोसोमल मटीरियल और डीएनए मटीरियल के थ्रू ये होगा। कमिंग टूवर्ड्स इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करके कौन कौन से एजेंट्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़ आर फाउंड इन वाइड क्लासिफिकेशन, वो हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। सम ऑफ देम आर वायरसेस होते हैं, राइट। वायरसेस आपको पता है। ओके वायरसेस आर सम बैक्टीरिया, सम आर फंगाई, सम आर सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स का मतलब क्या हुआ? अमीबा है, राइट। अमीबा है, प्रोकैरियोट्स हमने स्टडी किया। ओके द ऑर्गेनिजम्स विच हैव सिंगल सेल में हमने यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर का डिस्टिंग्विशन पढ़ा था। सिंगल सेल को हम यूनिसेल्युलर कहते हैं एंड मल्टी सेल्युलर मीन्स मोर देन वन सेल। तो वायरसेस क्या होंगे? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, और सिंगल सेल मीन्स यूनिसेल्युलर, एक सेल ધરાવતો ઓર્ગેનિઝમ જેને આપણે કહીએ છીએ પ્રોટોઝોન્સ में एग्जाम्पल आएगा अमीबा। ओके अमीबा है, पैरामीशियम है, these are the examples of single celled organisms। ओके फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी होगा। हमने वर्म्स पढ़े थे, प्लेटीहेलमिन्थेस में पढ़ा है, एनीलिड्स में पढ़ा है, राइट। वर्म्स सो निमेटोड्स में भी पढ़ा था। ओके सो उनके थ्रू भी डिजीज स्प्रेड होती है। उसे हम ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स मीन्स जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। नेक्स्ट वायरसेस कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या डिजीज कॉज करेंगे, दैट विल बी स्टडिंग। ओके वायरसेस है वो कौन सा डिजीज स्प्रेड करेगा? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स।
कमिंग टूवर्ड्स द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या है, टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स। फंजाई क्या है, मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अलग अलग टाइप्स के फंजाई जनरली स्पोर्स में अवेलेबल होंगे। स्पोर्स मतलब हमने पॉरीफेरा में पोर्स पढ़े थे ना, हाँ, लेकिन दोनों का सिमिलैरिटी कुछ नहीं है, मीन्स आपको मैं समझाना चाह रही हूँ, लाइक पोर्स जैसे सर्कल सर्कल जैसे स्पोर्स आपको दिखने को मिलेंगे फंजाई में। प्रोटोजोन्स क्या स्प्रेड करेगा, मलेरिया एंड काला अजर, वर्म्स, वर्म इन्फेक्शंस जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉज करता है, और एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस हमने प्रीवियस सेशन में आपको दिखाया था, जो पूरा पैर की स्वेलिंग हो जाती है वो। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स, ओके लेट अस सी नाउ वायरसेस, जो इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, डेंगू फीवर, एड्स जो स्प्रेड करता है, ठीक है, ये है वायरस का स्ट्रक्चर, यू आर वेल नोन, राइट। दूसरे हम फंगस पे आते हैं, फंजाई ले लो, फंगी ले लो, उसे हम फंगल भी कहते हैं, जैसे रिंगवर्म, दादर कहते हैं ना, दादर हो जाती है, रिंगवर्म। देखा ये स्पोर्स कैसे, स्पोर्स अवेलेबल है, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स आर अवेलेबल, ठीक है, ये सब राउंड स्ट्रक्चर्स है ना, वो जनरली राउंड स्ट्रक्चर्स फंजाई के हैं। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी आपने देखा है, जनरली आप अगर सोप की एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उसमें भी ऐसा ही टाइप का बैक्टीरिया दिखने को मिलता है, ओके। दीज ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट seen through naked eye, we can see them only through microscope. एग्जाम्पल्स है कॉलेरा, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोस एंड एंथ्रैक्स। अब प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, ये प्रोटोजोन है, ओके। हम अगर पैरामीशियम ले लो, प्लाज्मोडियम ले लो, अमीबा ले लो, दीज ऑल आर दी प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट कमिंग टू इम्पॉर्टेंट डिजीज़, जो डिजीज़ ह्यूमंस में होती है वो हम पढ़ेंगे अब, ओके। कौन कौन सी डिजीज़ होंगी, जैसे कॉमन कोल्ड वायरल है, ओके, किसके थ्रू होता है, उसका कॉज क्या है, राइनो वायरस, वायरस के थ्रू होगा, वायरस का नाम क्या है, राइनो वायरस, ये आपको सब याद करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकती ज़्यादातर, ओके। उसके सिम्टम्स, कॉमन कोल्ड में सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक है, कफ है, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट मतलब सूखी खांसी आती है, ओके, कोरी खांसी आपने कही है, उधरस, कोरी उधरस। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्मॉल चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी वायरस के थ्रू होता है, उसके सिम्टम्स है रैशेस, फीवर, एचेस एंड अनईजीनेस। कमिंग टूवर्ड्स मीसल्स, मीसल्स क्या है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, उसमें क्या होगा, आपकी आइज़ जो होंगी ना वो रेड हो जाएगी, लाल आँख हो जाती है, और पानी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पिंक रैशेज़ होंगे, ईचिंग होगी, खंजवाड़ होगी, बर्निंग एंड रैशेज़, जैसे रैशेज़ में कैसे हमें हमारी स्किन बर्न होने लगती है वैसे। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स टाइफॉइड, अब ये आएगा बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया से कौन कॉज होगा, टाइफॉइड होगा, उसका मेन कॉज टाइफॉइड, मतलब बैक्टीरिया का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफे, जो टाइफॉइड कॉज करता है, जो बैक्टीरिया टाइफॉइड कॉज करेगा उसका, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफे। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्किन रैश, आइदर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया हो सकता है। कमिंग टूवर्ड्स ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन भी दी जाती है, वैक्सीन का नाम है BCG, दैट विल बी स्टडिंग लेटर ऑन, ओके, आगे के वैक्सीनेशन के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। उसका कॉज मतलब कि जो बैक्टीरिया जिससे कॉज होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ओके, जो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज करेगा उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, नाइट स्वेट्स, ओके, मतलब स्वेटिंग होगी, फटीग होगी, मीन्स योर बॉडी विल लूजिंग दी इम्यूनिटी पावर, वेट लॉस होगा, ओके। अब आएगा प्रोटोजोन्स की बारी, प्रोटोजोन्स में क्या होगा, जनरली प्रोटोजोन्स हमने स्टडी किया था कि मलेरिया है वो प्रोटोजोन के थ्रू होता है, जैसे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ओके, उसका कॉज किसके, कौन सा प्रोटोजोन एग्जिबिट करेगा, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के थ्रू मलेरिया होता है। नेक्स्ट हम बात करें उसके सिम्टम्स के बारे में, तो फीवर एट इंटरवल, मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम में आपको फीवर के सिम्टम्स दिखेंगे, वीकनेस होगी बॉडी की, ओके। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स कैंसर, कैंसर किससे होगा, एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जनरली हमारी बॉडी ऐसे सेल्स प्रिपेयर करती है एबनॉर्मली, उसके सेल्स के
जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होने लगता है, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और ऐसा ग्रोथ सेल का जो एबनॉर्मली होता है, विद मीन्स लाइक द सेल्स आर नॉट इन कंट्रोल, या तो उसकी फंक्शनिंग भी प्रॉपर नहीं होती। तो उसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं किसके थ्रू कैंसर होगा, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, हाई फैट डाइट, मीन्स जो फैटी फूड हम खाते हैं, ऑयल वाला फूड, उसके थ्रू भी कैंसर का पॉसिबल चांसेस है। नेक्स्ट टूवर्ड्स हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज होता है। ओके, कॉज क्या है, ब्लड प्रेशर लेवल इंक्रीज होगा, स्ट्रेस, टेंशन, सॉल्ट इनटेक या तो ज़्यादा या तो कम लेना, फिर फैट इनटेक मतलब चर्बी वाला फूड। ओके, सो ये सब है डिजीज़ के कॉजेज एंड वॉट एवर द सिम्टम्स आर देयर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लेसेमिया। लेसेमिया क्या है जनरली, लेट मी टॉक अबाउट लेसेमिया। लेसेमिया इज़ अ प्रोटोजोन। ठीक है, लेसेमिया एक प्रोटोजोन है, जैसे अमीबा वो सब है, वैसे ही लेसेमिया प्रोटोजोन है। वो क्या है, वो क्या कॉज करेगा, काला अज़र। आगे ही हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि प्रोटोजोन काला अज़र जैसा एक डिजीज़ स्प्रेड करेंगे। तो उसका मेन कौन है जो काला अज़र कॉज करता है, लेसेमिया है। ओके, द ऑर्गेनिज्म, वो लेसेमिया कैसा है, ओवल शेप का ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक फ्लिप मतलब फ्लाजेला हमने पढ़ा था ना, हमने यूग्लिना के स्ट्रक्चर में पढ़ा, एक ऐसे फ्लाजेला जैसा होता है, जैसे सीलिया कैसे होगा, जैसे ये एग्जांपल ले लो, उसके एक पूंछ जैसी होगी। ओके, उसे हम विप लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे, फ्लिप जैसा होगा, तो उसे फ्लाजेला कहते हैं। ठीक है, तो उसके पास ये होता है, जैसे ये देख लो फ्लाजेला है ना। ओके, one organism arrow is divided while a cell of immune system lower right has gripped on the two whips of the dividing organism and is sent cell processing up to it। वो क्या करेगा, इम्यून पावर जो होगी वो कम करता है, इम्यूनिटी के सेल्स वो कम करता है, जिससे उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो कम होने लगती है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स द स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई क्या है, एक्नी। एक्नी मतलब जो भी हमारे फेस में जो क्रिएशंस दिखते हैं, ओके, फेस में जो एक्नीज दिखते हैं ना, वो सब, तो वो किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। स्टेफाइलोकोका एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके थ्रू एक्नी होता है। एक्नी इज अ डिजीज। अब आते हैं राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स हमने स्टडी किया था, एस्कैरिस हमने स्टडी किया था प्लेटी हेलमेंथिस में, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया था जो हमारे वर्म्स जो हमारे स्टमक में होता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट। तो ये एस्कैरिस का पिक्चर है, उसे हम कहते हैं एस्कैरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ओके, उसका साइंटिफिक नेम है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। Now coming, why is it important that we think of these categories of infectious disease? हम ये infectious disease क्यों पढ़ रहे हैं, उसका main function क्या है? These categories are important factors in deciding what kind of treatment to use members of each one of these group। अलग अलग बैक्टीरिया है, अलग अलग वायरसेस है, फंजाई है, सबके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, वायरस है, बैक्टीरिया एंड सो ऑन, फिर मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर ऑल वायरसेस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल हमने पढ़ा था, राइट। वायरसेस है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बहुत जनरल लीस्ट केसेस में होस्ट सेल्स में रहते हैं, लेकिन वायरसेस है, वायरसेस होस्ट सेल में रहते हैं। होस्ट सेल मतलब कोई भी बॉडी के अंदर जो वायरस रहेगा वो उसका होस्ट होगा। हमने वर्म्स के बारे में पढ़ा था, राइट। पैरासाइटिक जो वर्म्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। ओके, तो हम उसके लिए क्या है, होस्ट है। सिमिलरली वायरस लिव्स इन ए होस्ट सेल। कमिंग टूवर्ड्स वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। मल्टीप्लाई मतलब जो वायरसेस का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनका अगर ग्रोथ देख लो तो बहुत जल्दी ग्रो होंगे, उनका सेल डिवीजन जल्दी होता है। सिमिलरली वर्म्स के बारे में बात करूँगी तो वर्म्स का क्या है कि उनका मल्टीप्लिकेशन बहुत कम मीन्स बहुत धीरे होता है कंपैरिजन टू वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। Taxonomically, all bacteria are closely related to each other than to viruses and
वाइस वर्सा। अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो वायरस इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे का अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे ना तो सेम है। ओके, नाउ व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स? अलग अलग कैटेगरीज हम इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में क्यों देख रहे हैं? दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप। अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, हमने वो पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो लाइफ प्रोसेसेस होती है बैक्टीरिया का ग्रुप और वायरसेस का ग्रुप देखो तो जनरली आर नॉट शेयर्ड, मीन्स नॉट सेम। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो सिमिलर्स आर ऑलमोस्ट देयर। ओके, एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टेड अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अगर हमने कहा कि बैक्टीरिया है और वायरस दोनों की सिमिलैरिटी सेम है, तो ऐसा कोई ड्रग लेते हैं, ड्रग मीन्स और मेडिसिन रख लो, जो एक लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक करेगा। मतलब कि जो बैक्टीरिया है या तो वायरस है उसको ब्लॉक करता है, उसकी कोई भी लाइफ प्रोसेस, मतलब कि उसके जो इंटरनल सिस्टम्स जो वर्क करते हैं उसको ब्लॉक करेगा। किसके इंटरनल सिस्टम को? वायरस और बैक्टीरिया। ओके, समझ, ठीक से समझिए, जिसके अंदर डिजीज़ है, ओके, डिजीज़ वाले पर्सन के अंदर या तो वायरस होगा या तो बैक्टीरिया होगा। वायरस एंड बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो जो वायरसेस की लाइफ प्रोसेस होगी, लाइफ प्रोसेस मीन्स जो सिस्टम होती है ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सो ऑन, वो वायरस और बैक्टीरिया में ऑलमोस्ट सेम है। तो जो ड्रग या तो मेडिसिन हम लेते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, शायद वो वायरसेस के लिए भी इफ़ेक्टिव होती है, बट सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइक्रो बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। और अगर हम फंजाई की बात करें या तो प्रोटोजोन्स की बात करें, जो हम बैक्टीरिया के डिजीज़ के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हम बाद में प्रोटोजोन्स है या तो फंगस है उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। ओके, अगर हम बैक्टीरिया और वायरस की बात करते हैं तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ग्रुप में है। लेकिन अगर हम दूसरे ग्रुप मीन्स लाइक फंगस है, प्रोटोजोन है, वर्म्स हैं, उनके ग्रुप की बात करें तो उसमें वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइफ प्रोसेसेस है, वो डिफरेंट है। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कॉमनली बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवेज है बैक्टीरिया के जो जनरली ब्लॉक किए जा सकते हैं। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल। ऐसे बैक्टीरियाज है जो सेल वॉल क्रिएट करते हैं, तो वो सेल वॉल है उसको हम ब्लॉक करना है, उसकी लाइफ प्रोसेस को ब्लॉक करना है, बैक्टीरिया के प्रोसेस को ब्लॉक करना है, तो हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन लेते हैं जो क्या करेगा, बैक्टीरिया के प्रोसेसेस जिस दैट बिल्ड सेल वॉल, जो जनरली देखो, कंसिडर करो कि ये बैक्टीरिया है, ये खुद की बाहर की सेल वॉल बनाता है। बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है, राइट? बैक्टीरिया है, प्लांट से उनकी सेल वॉल होती है, तो ये सेल वॉल बना रहा है, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए। तो ये बैक्टीरिया को हमें रोकना है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल ना बने। कंसिडर करो ये बैक्टीरिया है, ओके, और ये सेल वॉल बना रहा है। तो सेल वॉल क्यों बना रहा है? खुद की प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा ड्रग देना है जो उसके सेल वॉल बनाने में हेल्प ना करे, सेल वॉल बनाने में उसका जो प्रोसेस है उसे ब्लॉक कर दे। तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के प्रोसेस मीन्स जो सेल वॉल बनाने की प्रोसेस है उसे ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा कि जैसे बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बनेगा तो उसका प्रोटेक्शन भी नहीं होगा। अगर उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा तो वो इजीली डाई हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल। अगर हम पेनिसिलिन ऐड करेंगे तो पेनिसिलिन क्या करेगा? सेल वॉल को ब्लॉक कर देगा। तो जब वो सेल वॉल को ब्लॉक कर देगा तब बैक्टीरिया को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो वो इजीली डाई हो जाएगा। नेक्स्ट कमिंग टू ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल, ठीक है। ह्यूमन सेल्स क्या है कि ह्यूमन के सेल्स सेल वॉल नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, सो पेनिसिलिन कैन नॉट
हैव सच एन इफ़ेक्ट ऑन अस। इसीलिए अगर हम पेनिसिलिन लेते हैं तो हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल है ही नहीं, हम सेल वॉल बनाते ही नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। हमारे अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सिमिलरली इफ़ आई टॉक दैट पेनिसिलिन विल हैव इट्स इफ़ेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया सेल वॉल बनाता है। ओके, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उस सब में क्या है? प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल वॉल बनता है। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। अलग अलग बैक्टीरियाज के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स होती है, और ऐसी भी एंटीबायोटिक्स होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक बैक्टीरिया पे वर्क करता है और दूसरे पे शायद ना वर्क करे। ओके, सो देर आर पॉसिबिलिटीज़। ये ह्यूमन सेल है, आपको पता है, ठीक है। ह्यूमन सेल में बीच में न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए और क्रोमोसोमल मटेरियल होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मटेरियल होगा, एंड सेल वॉल इज देयर, ठीक है। सेल वॉल ह्यूमन सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। Next, coming towards viruses, but viruses do not use these pathways at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infections. ठीक है, हम वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पाथवेज ब्लॉक करने में ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। इसीलिए इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस द सिवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। अगर हम कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं कॉमन कोल्ड के लिए तो उसकी सिवियरिटी रिड्यूस नहीं कर सकते, मीन्स लाइक उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो। हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द वायरल कोल्ड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प। अगर वायरल कोल्ड है, ओके, अगर हम उसे ले रहे हैं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू है, तो वो एंटीबायोटिक इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि जैसे पेनिसिलियन मैंने कहा, पेनिसिलियम क्या करेगा कि जनरली उसकी सेल वॉल की जो ग्रोथ होगी उसकी उसको रोकेगा, ब्लॉक करेगा। So, even then the antibiotic will work only against the bacterial part of infection, not the viral infection. अगर आपको बैक्टीरियल कोल्ड, वायरल कोल्ड भी हुआ है, एंड सॉरी बैक्टीरियल जो कोल्ड है वो भी हुआ है, एंड वायरल कोल्ड हुआ है, दोनों कोल्ड हुआ है। सिमिलरली इफ़ यू आर टेकिंग पेनिसिलियम या तो कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो किस पे एक्ट करेगी? ओनली द बैक्टीरियल बैक्टीरियल पार्ट पे ही इन्फेक्ट करेगी, वायरस पे नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग फॉर देम, राइट। ओके, तो यहाँ तक हम हमारा सेशन कंक्लूड करेंगे। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, आपको सब समझ में आया। अगर कोई डाउट्स है देन आई विल टेक एन ऑनलाइन सेशन, और आपको डेली जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको रीड करना है विथ फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। सो एक और सेशन लेना पड़ेगा टू कंप्लीट द चैप्टर। ओके, ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस हम पढ़ेंगे। हम थोड़े और इन्फेक्शियस डिजीज़ के मीन्स ऑफ स्प्रेड पढ़ेंगे। ओके, विल बी स्टडिंग सम ऑफ द डिजीज़, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है, फिर वैक्सीनेशन, एंड दैट्स इट, राइट। सो आई नीड वन मोर सेशन टू कंप्लीट दिस चैप्टर। विद इन द नेक्स्ट session will be completing it, and I hope you enjoyed the lecture. If not, then I'll be explaining you if you are unable to get the point, right? So till that, stay safe, stay healthy. Thank you.